Hello students, how are you? Today we are going to solve our exercise from 2.38. Okay, let's start the question. A certain particles carries 2.5 into 10 to the power 16 coulomb of static electric charge. Calculate the number of electrons present in it, right? We have given the charge of a particle and we have to calculate the electron. For that, first of all, we know that the charge of one electron is 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? Now, from this statement, we can write that if 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb charge of one electron, then the given charge, which is 2.5 into 10 to the power minus 16 coulomb, is for how many electrons, right? So we have to carry it out simply cross multiplication. So number of electron equal to 2.5 into 10 to the power minus 16 divided by 1.6022 into 10 to the power minus 19. Now when you divide that two term, you will get 1.560 into. Now that minus 19 comes to upper side and that converted into plus 19. So you get 10 to the power minus 16 plus 19. It will be a 10 to the power 3. So if you see that if we shift the 3-digit right hand side, then it converted into 1560. यहाँ पे राइट हैंड साइड जाने की वजह से यहाँ से -3 करेंगे तो हमें मिलेगा 10 to the power 0 and 10 to the power 0 is equal to कितना हो जाता है 1. So we get the number of electron which are present in 2.5 into 10 to the power minus 16 coulomb charge is 1560 electrons. Exercise 2.39. In Millikan experiment, static electric charge on the oil drop has been obtained by the shining X-rays. If the static charge on the oil drop is minus 1.282 into 10 to the power minus 18 coulomb, calculate the number of electrons present on it. Right here, what is given? The charge of that oil drop is given. राइट एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन मीन्स जैसा कि हमने अगले वाले क्वेश्चन में किया कुछ ऐसा ही करना है. ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मिलिकन का कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट है. सही है, हमने उसके बारे में बात की थी. मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन द थियोरी, राइट, के उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन था उसका चार्ज फाइंड आउट किया था. तो उन्होंने क्या बोला कि जो ऑयल ड्रॉप है उस एक्सपेरिमेंट में उसका चार्ज इतना है, तो वो जो इतना चार्ज कंटेन करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमें फाइंड आउट करना है. मतलब पहले जैसा ही हमें करना है. वन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज माइनस 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. अब यहाँ पे माइनस क्यों ले लिया? तो जो क्वेश्चन दिया गया है वहां पे चार्ज जो है वो माइनस है. तो कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस नहीं होते. तो उसी माइनस को रिमूव करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए हमने ये भी माइनस ले लिया. वैसे भी ये चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का. और इलेक्ट्रॉन हैविंग का नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन ऐड कर सकते हैं. So we can write that minus 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb charge of one electron. That then the given charge, which is minus 1.282 into 10 to the power minus 18 coulomb charge of how many electron, right? So number of electron equal to minus 1.282 into 10 to the power minus 18 divided by minus 1.6022 into 10 to the power minus 19. Now minus will be cancelled out, and if you divide that two term you will get 0.800, and ये जो minus 19 है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा plus 19. So you will get minus 18 plus 19, which is equal to 10 to the power 1. So you can write that the number of electron present in that charge is 8 electron, right? Now exercise question number 2.40. In Rutherford experiment, generally the thin foil of heavy atoms like gold, platinum, etc. have been used to be bombarded by the alpha particles. If the thin foil of the light atoms like aluminium, etc. is used,
व्हाट डिफरेंस वुड बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अबव रिजल्ट, राइट। हमने रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है, सही है, कि उसमें क्या था, तो गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया और फिर उसका जो रिजल्ट था उसे ऑब्जर्व किया और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो हमारा एटम मॉडल था वो उन्होंने सजेस्ट किया था, राइट। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, सही है, सपोज कि ये गोल्ड फॉइल है जिस उन्होंने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया था, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, मोस्ट ऑफ पार्टिकल आर पास स्ट्रेट अवे दैट अल्फा थिन गोल्ड फॉइल थिन, राइट। सम पार्टिकल्स आर डेविएट एट अ फ्यू एंगल, सही है, थोड़ा सा डेविएट हुए थे अपने एंगल से, और कुछ ही पार्टिकल, सही है, रेशियो भी हमने देखा था कि 20,000 में से एक पार्टिकल, वन फ्रॉम द 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या हुआ था, तो बैक हुआ था, सही है। तो ये कुछ रिजल्ट हमने रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखा था। अब यहाँ पे ये बोला गया था कि जो ये फॉइल है वो हमने गोल्ड फॉइल यूज की थी, और उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट काफी बार रिपीट किया तब ही यूज्ड गोल्ड फॉइल और प्लेटिनम फॉइल, राइट, मतलब जो हैवी मेटल्स है हमारे उनकी ही उन्होंने फॉइल यूज की थी, लेकिन ही डिड नॉट यूज द एल्यूमिनियम फॉइल। एंड इफ ही यूज दैट फॉइल, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दैट टू ऑब्जर्वेशन, वो हमें डिस्कस करना है, सही है। तो उन्होंने ये क्यों नहीं किया, उसका रीजन है, द न्यूक्लियस ऑफ लाइटर एटम्स कैरीज स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज एंड अ स्मॉलर वॉल्यूम, सही है, कि अगर हमने एल्यूमिनियम ले लिया तो एल्यूमिनियम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज कम है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है, तो उसके पास पॉजिटिव एटम भी कितने हुए, 13 हुए। मीन्स एल्यूमिनियम हैज अ स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज। अगर स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसका जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस कहाँ है, बीच में है, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, सही है, उसका वॉल्यूम भी स्मॉल हो जाएगा। अगर वॉल्यूम स्मॉल है तो उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल एंड थ्रू अ लार्ज एंगल वुड बी अ लेस। यहाँ पे जो थोड़े बहुत भी अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे या फिर जो बैक हो रहे थे, वो जो हमने गोल्ड फॉइल ली थी, तो गोल्ड फॉइल के लिए तो उसका एटॉमिक नंबर प्लेटिनम गोल्ड फॉइल का जो वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू ये एल्यूमिनियम ज़्यादा है, सही है। तो हमें थोड़ा बहुत भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ, लेकिन उसकी अगर हमने एल्यूमिनियम यूज किया होता तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कम है, उस वजह से उसका जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो भी कम होगा। अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम कम है तो फिर जो ये डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया था उन्होंने कि सम पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ एंड सम आर रिफ्लेक्टेड बैक, तो ये ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ये इतना छोटा वॉल्यूम है कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, जो ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता। उसी वजह से उन्होंने लाइटर एटम को चूज नहीं किया एंड ही यूज द हैवी एटम्स फॉइल। ओके, now the next question, exercise 2.41, symbol of bromine 3579 and bromine 79 can be written, whereas the symbol bromine 7935 and bromine 35 are not acceptable. Answer briefly. सही है, हमें क्या बोला गया है कि ये जो वे है, दो वे है, उसमें हम ब्रोमीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो राइट वे है, लेकिन हम या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में ब्रोमीन को रिप्रेजेंट करना चाहे तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। और उसे हमें जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है, इन दोनों को क्यों हम ऐसे फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं जबकि ऐसे फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, उसे हमें जस्टिफाई करना है। ओके, तो पहला जो केस है उसके बारे में बात करते हैं, वन बाय वन सबके बारे में बात कर लेते हैं। इन द फर्स्ट केस, bromine 3579 can be written because
atomic number and atomic mass are at the proper position. We know that for the any atom, suppose कि कोई एक एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है. मीन्स कि ये जो है वो राइट रिप्रेजेंटेशन है फॉर एनी एलिमेंट. तो ये जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक नंबर 35 है, उसका एटॉमिक मास 79 है, मतलब वो प्रॉपर वे में लिखा गया है. सो इट कैन बी एक्सेप्टेबल, राइट. नाउ फॉर द सेकंड टर्म ये भी क्या है, तो हम ब्रोमीन 79 कैन बी ऑल्सो रिटर्न. व्हाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर फॉर द ब्रोमीन इज डिफाइनाइट. सही है कि ब्रोमीन है तो हमें पता है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 35 है. उससे आप यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन आपने ब्रोमीन लिखा है, मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है, डिफाइनाइट है, एक फिक्स वैल्यू है. एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है. किसी एक एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर ही एटॉमिक नंबर होता है. सही है, तब हम उसे ऐसे में रिप्रेजेंट करें तो चलेगा कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आपने उसका सिंबल लिखा है, मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स है, डिफाइनाइट है, तो हम उसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना. जो दूसरे दो ऑप्शन है जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसकी बात कर लेते हैं. वाइल ब्रोमीन 79 35 कैन नॉट एक्सेप्टेबल. क्यों? आप देख सकते हो जो ये 79 है इट्स द एटॉमिक मास फॉर द ब्रोमीन एंड 35 इज द एटॉमिक नंबर फॉर द ब्रोमीन. और उसका प्रॉपर वे ये है कि एटॉमिक नंबर नीचे होता है, एटॉमिक मास ऊपर होता है. यहाँ में तो उलट सुलट कर दिया है, मतलब एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आर नॉट एट अ प्रॉपर पोजीशन. और अगर वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है तो हम उसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ब्रोमीन का 79 एटॉमिक नंबर नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 35 है, तो उससे प्रॉपर पोजीशन में होना जरूरी है. सही है, ये पोजीशन चाहिए ही चाहिए कि एटॉमिक नंबर नीचे ही चाहिए, एटॉमिक मास ऊपर ही चाहिए. ओके, नाउ द लास्ट वन, ब्रोमीन 35 इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. यहाँ तो एटॉमिक मास उसी जगह, एटॉमिक नंबर उसकी जगह ही है, फिर भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि बिकॉज एटॉमिक मास इज नॉट फिक्स फॉर द आइदर आइसोटॉप्स, देयर आइसोटॉप्स. सपोज कि हमें ब्रोमीन की बात करें तो हमारे पास ब्रोमीन के आइसोटॉप्स प्रेजेंट है, ब्रोमीन 3579, ब्रोमीन 3581, राइट. तो अगर हमने सिर्फ ब्रोमीन 35 लिखा है तो हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये ब्रोमीन 79 है या ब्रोमीन 81 है. सही है, मतलब जो आइसोटॉप्स होते हैं उसके एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, फिक्स नहीं है यहाँ पे जो ब्रोमीन है उसका मास फॉर द आइसोटॉप्स. सही है, तो ये एसेंशियल है क्या, टू डिनोट देयर मास नंबर. ये मास नंबर लिखना क्या है, फिक्स है, नेसेसरी है. क्यों एसेंशियल है? क्योंकि आइसोटॉप्स के लिए एटॉमिक मास डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो क्या है, फिक्स ही है. तो आप एटॉमिक नंबर ना लिखो तो चलेगा, लेकिन यू हैव टू राइट द एटॉमिक मास फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ओके, तो ये हो गया हमारा कि ये दोनों वे में हम एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्रॉपर वे नहीं है, उसका जस्टिफिकेशन भी हमने दे दिया. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. Now see the next question, exercise 2.42. An element with mass number 81 contains 31.7% more neutron as compared to protons. Assign the एटॉमिक सिंबल. सही है, हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर है 81, मीन्स वी हैव गिवन एटॉमिक मास विच इज 81, राइट. और दूसरा ये दिया गया है कि उस एलिमेंट के पास 31.7% मोर न्यूट्रॉन है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन. सही है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एटॉमिक सिंबल. एटॉमिक सिंबल के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक्स जेड ए. यहाँ पे ए दिया गया है, हमें एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है और उसका सिंबल फाइंड आउट करना है. ओके, अगर एटॉमिक नंबर मिल जाता है तो उसका नंबर जो है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और एटॉमिक नंबर कैसे मिलेगा, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. सही है. नाउ एटॉमिक मास दिया गया है, हमें पता है जो एटॉमिक मास है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू भी एटॉमिक मास होता है. तो ये दोनों का अगर हम एडिशन करें तो हमें एटॉमिक नंबर 81 मिलेगा, राइट. यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कंपैरिजन भी दी गई है. तो वी कैन सपोज दैट लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एक्स. सही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने सपोज कर लिया कि वो कितना है, एक्स. देन
द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो कितने हो जाएंगे, तो x तो होंगे प्लस जो हमारे प्रोटॉन है उससे 31.7% ज्यादा है, मीन्स वी कैन राइट दैट x प्लस 31.7% ऑफ x, जो हो जाएगा x प्लस 31.7 डिवाइडेड बाय 100x. सो x प्लस 0.317x, सो यू विल गेट 1.317x, राइट. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस 0.317 हो जाएगा 1.317x. तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल गए. ना उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं. सो वी विल गेट नंबर ऑफ प्रोटॉन है x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 1.317x इक्वल टू 81 है. नाउ यहाँ से फिर से x कॉमन हो जाएगा, देन वी विल गेट 1 प्लस 1.317 इंटू x इक्वल टू 81. सो वी विल गेट 2.317x इक्वल टू 81. सो अवर x विल बी 81 डिवाइडेड बाई 2.317, राइट. तो वो कितना हो जाएगा, देयरफॉर x विल बी 34.96 एंड विच इज नियर अबाउट 35, क्योंकि ऐसे कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं होता है जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर है, और वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होते हैं, तो उसी वजह से उसे नियरेस्ट फॉर्म में लिख दिया है, होल नंबर के फॉर्म में. तो 34.96 है, इट्स नियर अबाउट 35. तो यहाँ पे x मिल गया हमें 35, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू x है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 35 इक्वल टू एटॉमिक नंबर. हमारा एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया 35. नाउ एटॉमिक नंबर 35 किसका है, वी नो दैट इट्स अ एटॉमिक नंबर फॉर द ब्रोमीन. यहाँ पे नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 35, ऊपर होता है एटॉमिक मास, तो 81. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एलिमेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट, कि जिसके एटॉमिक नंबर हो, मास हो 81 और जिसके पास 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन हो एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो हमारा एलिमेंट है वो हो जाएगा ब्रोमीन 35, 81, और ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया. ओके, डू यू गेट इट? नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.43. An ion with mass number 37 possess 1 unit of negative charge. If ion contains 11.1% more neutrons than electrons, find the symbol of the ion. Right? हमें क्या दिया गया है? तो we have given that the first of all the atomic mass which is 37. So we can write that neutron plus प्रोटॉन इक्वल टू 37, राइट. चलो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ. देन रीड द सेकेंड क्वेश्चन स्टेटमेंट अगेन. 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो हमारा आयन है उसके पास क्या है, तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है. नाउ इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन दी गई है. सो वी सपोज दैट लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू x, right. Now ion having 1 unit नेगेटिव चार्ज, सही है. एक्चुअली क्या होता है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, सही है. लेकिन यहाँ पे जो हमारा आयन है उसके पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, मीन्स आयन हैज 1 more electron as compared to proton, सही है.
कि जो प्रोटॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। क्यों? उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब क्या होता है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ओके, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और गेन करने पे उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। कितने नेगेटिव चार्ज है? 1, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को x सपोज किया है, देन वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी x माइनस 1, राइट। क्योंकि वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन आयन ने एक इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट है उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? एक कम होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएंगे x माइनस 1, राइट। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसके लिए क्या दिया गया है? इट इज मोर 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स। सही है, मतलब कि हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सपोज x हो तो वो होगा x प्लस 11.1% ऑफ दैट x, तो हो जाएगा x प्लस 11.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x. So you will get x plus 0.111x. So you will get 1.11x of neutron, right? Now number of neutron मिल गए, number of proton मिल गए, and we having the formula for the mass number which is the n plus p is equal to 37. Number of neutron है 1.111x plus हमारे पास जो number of proton है वो है x minus 1 equal to 37. सो यहाँ पे ये पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म में x कॉमन निकलेगा। सो वी विल गेट 1.111 प्लस 1x इक्वल टू 37। ये माइनस 1 इक्वल टू के अदर साइड जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस 1। सो यू विल गेट 2.111x इक्वल टू 38. So our x will be 38 divided by 2.111, which is equal to 18, right? वो कितने के इक्वल टू है? 18 के इक्वल टू। नाउ 18x आया हमारा, मतलब कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? 18। लेकिन जब भी हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना होता है वो तो क्या होता है? x z a गिवन है। अब हमें z चाहिए, मतलब z इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, तो यहाँ से पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 1. सो 18 माइनस 1 इट विल बी 17, और 17 एटॉमिक नंबर हो। ऐसा कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? तो क्लोरीन है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। एटॉमिक मास दिया गया है हमें 37, सो ये हो गया 37, और साथ में 1 यूनिट चार्ज, नेगेटिव यूनिट चार्ज दिया गया है, मतलब माइनस। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्लोरीन 17 37 माइनस, सो ये Cl माइनस 17 37. ओके, डू यू गेट इट? ओके, वैसा ही एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2.44. An ion with mass number 56 contain 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे क्या है? हमारे पास मास नंबर है 56 एंड हैविंग 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मास नंबर 56 है, मतलब वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 56, राइट. नाउ यहाँ पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्या दिया गया है? 30.40% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में इतने न्यूट्रॉन ज्यादा है, मतलब कि हमें किसे सपोज करना है? लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी भी कंपैरिजन दी गई है उसे ही सपोज करना है, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x, राइट. नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आयन हैविंग 3 more unit charge, positive unit charge, right? We can write that ion having 3 unit positive charge means पॉजिटिव चार्ज है, उसका मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव का मीनिंग होता है उसने डोनेट किया है. सही है, 3
चार्ज पॉजिटिव है, मतलब कि उसने डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए है, सही है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन अभी हमने सपोज किए वो तो अभी जो है वो, लेकिन एक्चुअल में जो थे उसमें से 3 डोनेट कर दिए, तो उसके पास होंगे कितने, x+3 होंगे, तभी उसने 3 डोनेट करने पे उसके पास कितने रह गए, x। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास अभी आयन प्रेजेंट है उसके अंदर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए हैं, तो वी कैन से दैट आयन हैज 3 मोर प्रोटॉन, सही है, 3 मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसने डोनेट किए तो प्रोटॉन से कम हो जाएंगे, तो प्रोटॉन 3 ज्यादा होंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन will be x+3. Now number of neutron equal to x plus 30.40% of that x, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा दिए गए हैं इतने वो नंबर। चलो x plus 30.40 divided by 100 into x, so you will get x plus 0.3040 of x, so you will get 1.3040 x number of neutron. Now we having n plus p is equal to 56, right? So n हो गया हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1.3040 x प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन है x plus 3 is equal to 56. So we will get, यहाँ पे हो जाएगा 2.3040x इक्वल टू 56 माइनस 3, ये 3 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो यू विल गेट 2.3040x इक्वल टू 53. So your x will be 53 divided by 2.3040, so it will be a 23, right? नाउ ये x तो हमने क्या सपोज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें तो एटॉमिक नंबर के लिए चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि है x+3, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू x+3, सो 23 + 3 यू विल गेट 26, एटॉमिक नंबर 26 हो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो आयरन है, सही है, Fe, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26, उसका एटॉमिक मास दिया गया है 56 और उसके प्लस 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। सो ये जो हमारा गिवन डेटा है उसके ऊपर से जो एलिमेंट हमने आपने फाइंड आउट किया है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा Fe+3 26 56, सही है, एटॉमिक नंबर है 26, एटॉमिक मास है 56 एंड उसके पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सही है। तो ये हो गया कंप्लीट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द गिवन डेटा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चन वेरी वेल। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारा जो एलिमेंट है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।